to start yes, granulocytes. A granulocytes का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा. फिर हम लोगों को चालू करना है फंक्शंस, राइट? और अदर फंक्शंस क्या बोल रहा हूँ, सेल्स और उनके डिफरेंट फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. सो इफ यू रिमेंबर, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स का प्राइमरी डिफरेंस क्या रहेगा? ग्रैन्युलोसाइट्स आर द वन व्हिच हैज the lobe nuclei and they will have the cytoplasm of them will have the granules within it. ठीक है, protein granules. So it appears rough, so it's called as granulocyte, whereas a granulocyte is the one which does not have the granules, so cytoplasm is clean and the nucleus does not have the lobes. तो हम लोगों ने ये स्लाइड पढ़ा था of the granulocytes, and if you remember मैंने ये भी बताया था a granulocytes can be remembered as BEN, basophil, eosinophil and neutrophil, और उसके साथ फिर आता है the next one, that is lymphocyte and monocyte. So lymphocyte and monocyte are basically the A granulocytes. Okay, so lymphocyte का function क्या है? So lymphocyte basically primarily responsible for the production of antibodies. So जो हम लोग बोलते हैं ना कि WBCs are responsible for immune response, immune system, तो उसमें से majority of the role is played by lymphocytes. ठीक है, यही शुरुआत है जोया. ठीक है, तो हाँ क्या हुआ? फंक्शंस हो गए थे सर. हाँ हाँ हाँ, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ because I want to connect this to the next topic which I am going to teach you. So primarily it is responsible for the production of antibodies. As I said, therefore forms the immune response. तो हम लोग जो बोलते हैं कि WBCs are responsible for immunity. So which is that WBC which is majorly responsible for that is the lymphocyte. So lymphocyte has that particular work to be done by them. Monocyte will be phagocytic in nature, and monocyte is the only WBC which shows diapedesis, meaning which can squeeze out of the capillaries. Okay, जैसे for example we have this particular monocyte here. Now this monocyte has to reach to the site of infection, जहाँ पे microorganism वहाँ पे उनको जाना है, but monocyte is present inside the blood, so it starts coming out from the blood through the blood capillaries, through the pores which are present in the blood capillaries. Very good, Dia. That's called as diapedesis. ठीक है, here at the site of infection it starts becoming a macrophage, or it gets converted into a macrophage, and then it starts eating up and swallowing the microorganism. तो एक typical function रहेगा monocyte का to swallow and engulf the microorganism by the process called as phagocytosis. तो phagocytosis से ये mechanism होगा, and this is how the entire mechanism will be completed. ठीक है, therefore monocytes are called as the scavengers. Scavengers इसके लिए क्योंकि not only inside the blood but outside the blood also, if there is an infection, these cells will reach up to that particular area and will kill the microorganism, and that is why they are known as the scavengers. मतलब इधर उधर घूमकर बराबर पकड़ कर बैक्टीरियाज वायरसेस को ये मारने का काम करते हैं. मेजरली बैक्टीरियाज may not be that effective on viruses. ठीक है, चलो अभी ना हम लोग जो बात कर रहे हैं that is about the lymphocytes, the most important. ठीक है, now as I said, lymphocyte is the one which is majorly responsible for the immune system or immune response. So lymphocyte के बिना दो अलग अलग टाइप्स आते हैं. थोड़ा भी ध्यान दो इधर क्योंकि this part is going to be important. इसके दो अलग अलग टाइप्स है. कौन से दो टाइप्स आते हैं? तो सबसे पहला, the first type here is known as the T lymphocyte. ठीक है, and the second one is known as the B lymphocyte. ठीक है, so we have two different types of cells here. One is called as the T lymphocyte and the other one is known as the B lymphocyte. तो ऐसे ये दो cells रहेंगे. Okay, yeah, that table is over, सानिका. अभी ये थोड़ा सा lymphocyte का explanation में दे रहा हूँ, so that table is done now. तो lymphocyte में ये दो टाइप है, T lymphocyte and B lymphocyte. T lymphocyte is further divided into some other types. तो T lymphocyte के भी कुछ types आते हैं. Let us try and identify and understand what are the different types of T lymphocyte. तो इसमें भी ना चार अलग अलग टाइप्स आएंगे. सबसे पहला जो टाइप आता है ना, this type is known as helper T cell. Okay,
उसके बाद सेकंड टाइप इज नोन एज द किलर टी सेल, ठीक है। थर्ड टाइप which is present here is known as suppressor T cell, and the last type here is called as the memory T cell. तो ऐसे ये T lymphocyte के टाइप है, एंड सिमिलरली B lymphocyte will have two different types. कौन सा दो टाइप रहेगा? तो B lymphocyte will have the first type that is known as the plasma B cell, and the second one is known as the memory B cell. Now, अभी थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, पहले समझ लो उसके बाद लिखो, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, सो इट इज इसेंशियल फॉर यू टू फोकस and concentrate on what I'm teaching. Okay, now when we talk about T lymphocyte, why it is called as T? So here this T stands for thymus gland. You must be knowing there is one gland which is present near the heart. Heart से नजदीक एक gland होता है. This gland is called as thymus gland, and it is going to secrete its hormone known as thymosin. Thymosin is a type of hormone which is secreted by them, and this thymosin which is secreted here will help in maturation of these T cells. तो जितने भी T cells है ना, ये सबको मैच्योर करने का काम कौन कर रहा है? This is done by the thymus gland. And because thymus gland is responsible for maturation of the all four different types of T lymphocyte, therefore it is called as T lymphocyte. इसके लिए उसको T lymphocyte ऐसा नाम दिया है. Yes, सबके लिए होता है. Whereas B here stands for what? Now, this particular cell for the first time was found out in a small organ in the bird that is known as the bursa of Fabricius. ठीक है, bursa of Fabricius, which is a small gland present near the cloaca in birds. ओके, बर्ड्स में क्लोएका से नजदीक एक ऐसा ग्लैंड होता है, दिस इज नोन एज बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, और इसमें दिस पर्टिकुलर सेल, दिस टाइप ऑफ सेल वाज फाउंड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सेम सेल इज प्रेजेंट इवन इन द ह्यूमंस. इसके लिए उसको नाम दिया गया बी लिम्फोसाइट. ठीक है, तो ये नाम कहां से आया? टी क्या होता है और बी क्या होता है, ये दोनों भी मैंने आपको बता दिया है. T stands for thymus gland, which is going to secrete thymosin, helps in maturation of all the four T cells, and B stands for bursa fabricius, which is a gland. कौन सा gland है? It's a lymph gland or a lymph node. ठीक है, so it's a type of lymph node which is present near the cloaca. What do you know? What is cloaca? Cloaca is the anal region of the birds. ठीक है, in birds. Very good, Sanika. So cloaca is the anal region in the birds, and that is responsible, and there these cells are developed, and same cells, similar cells are found in humans. हम लोगों में ये नहीं होता है ग्लैंड, लिम्फ नोड हमारे में नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं आएगा, लेकिन जो सेल ये ग्लैंड में उनको मिला था, सेम सेल हमारे बॉडी में भी मिला, प्लाज्मा में, ब्लड में. दैट इज व्हाट इज नोन एज बी लिम्फोसाइट. पहले ये पूरा इंफॉर्मेशन लिख लो, फिर हम लोगों को हर एक सेल का एक्शन पढ़ना है. जस्ट राइट दिस डाउन. Sir, I joined a few minutes ago. How many pages? अभी यही लिखना है गौरव. Start with this. अमन को क्लोएका समझा नहीं. सर सप्रेसर मीन सब बोलता हूं मैं सब. जोया, मैं अभी ये सारा पढ़ना है हम लोगों को सेल्स. ठीक है. Yes, this is the first slide में. सर वो बी के पार्ट में नीचे क्या लिखा है?
बी के नीचे वो ग्लैंड है ना, लिम्फ नोड लिखा है मैंने। ग्लैंड मतलब क्या है, तो ग्लैंड मतलब लिम्फ नोड है, इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है। अमन इसमें क्या नहीं समझा, क्लोएका इज बेसिकली एनल रीजन ऑफ द बर्ड्स, और वो क्लोएका के नजदीक एक लिम्फ नोड होता है, और उस लिम्फ नोड में ये वाले सेल्स मिलते हैं ऑफ बर्ड्स, एंड सिमिलर सेल्स वर फाउंड इन आवर बॉडी इन द ब्लड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बी lymphocyte. But it was first discovered where it was first discovered in the lymph node of the birds. ओके, बर्ड के लिम्फ नोड्स में पहली बार इसको डिस्कवर किया गया, इसके लिए उसको नाम दिया गया है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलो हो गया लिख के ये सब। सर तो ये सेम ग्लैंड ह्यूमंस में भी प्रेजेंट है? नहीं, इसलिए मैंने क्या बताया, सेम ग्लैंड ह्यूमंस में होता नहीं है, सिर्फ सेल? लेकिन सेल सेम होता है। ओके। हाँ सर आपने Yes. कहा कि ये जो बी लिम्फोसाइट है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा में, हाँ, यानी इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्लड सेल्स ओनली ना। तो सब प्लाज्मा में जो सोल्यूट्स रहते हैं तो वो सोल्यूट्स के अंदर रहता है या फिर वो जो प्रोटीन्स बनते हैं उनमें? आरबीसीज कहाँ रहते हैं? सेल्स, आरबीसीज किधर रहते हैं भाई मेरे? ब्लड में। ब्लड में ना। हाँ। अरे पूजा, मैंने आपको किया प्रमोट बेटा, ब्लड में रहता है ना, एंड व्हाट इज ब्लड मेड अप ऑफ? प्लाज्मा एंड ब्लड हाँ, सेल। बस वैसा ही एक सेल है ना ये, सेम। ओके, अलग कुछ नहीं है। लेकिन उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, तो इट वाज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बर्ड्स, इसके लिए उसको नाम दिया गया बी लिम्फोसाइट, दैट्स इट। इट इज प्रेजेंट बिफोर द एनल रीजन, यानी एनल रीजन से, एनस से थोड़ा सा पहले ये ग्लैंड रहता है। ठीक है। क्लोएका ऐसे लिखा हुआ मैंने, क्लोएका, CLOACA। हो गया लिख के? चल वी मूव अहेड। यस सर। चलो गुड। अभी देखो, टी लिम्फोसाइट के अलग अलग सेल्स हमने पढ़े, तो सबसे पहला जो सेल हम लोगों ने पढ़ा है ना, चलो सबसे पहले तो मैं एक पहला सेल बोल देता हूं, दैट इज किलर टी सेल। नाम से पता चलता है, व्हेन आई से किलर टी सेल्स मतलब क्या, द वन विच इज गोइंग टू किल द माइक्रोब। अभी स्पेशली ये कौन से माइक्रोब के ऊपर काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द बैक्टीरिया। कैसे काम करेगा? बाय रिलीजिंग अ केमिकल सब्सटेंस, सो इट रिलीजेस अ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज परफोरिन। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस रिलीज करेगा? परफोरिन। परफोरेशन का मतलब आता है होल्स। तो सपोज वी हैव दिस बैक्टीरिया हियर, तो ये बैक्टीरिया के ऊपर जब ये रिलीज करेगा ना, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग मेनी सच होल्स. So what this perforin does is that it starts making the holes on the wall of bacteria, cell wall of bacteria. ठीक है, और जैसे ही बैक्टीरिया के सेल वॉल पे होल्स हो जाएंगे, दिस बैक्टीरिया विल बी, बिकॉज ऑफ दिस द बैक्टीरिया विल बी किल्ड, क्योंकि एक्टिविटी कम हो गया या बंद हो गया। सिंपल। हेलो, समझ में आ रहा है आपको ये? यस सर। हाँ, सो दिस आर कॉल्ड एज द किलर टी सेल्स। ठीक है, किलर टी सेल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या रहेगा? टू रिलीज अ केमिकल सब्सटेंस नोन एज परफोरिन। परफोरिन इज द नेम। ठीक है, डन, आगे बढ़े। No, sir. Oh, sir, 1 minute. हाँ,
Done, sir. हो गया, सबका हो गया? Yes, sir. 1 minute. ठीक है, चलो किलर टी सेल्स। अच्छा, कुछ बुक्स में इसका नाम दूसरा भी दिया हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, ऐसे साइटोटॉक्सिक मतलब द वन विच रिलीजेस टॉक्सिन्स इन द साइटोप्लाज्म, इसके लिए उसको बोला गया साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके, अभी क्या होता है देखो, थोड़ा ध्यान दो। अभी बचा कौन है? अभी बचा है हमारा हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, और उसके बाद आता है मेमोरी सेल या फिर प्लाज्मा बी सेल। दो टाइप के मेमोरी सेल्स है। ठीक है, एक मिनट। चलो हो गया। मास्टर क्लास नासिक इज प्रमोटेड टू लिस्ट। ओके, अभी ध्यान दो इधर। Now, the next cell which we have here is the helper T cell. Now, what helper T cell is going to do here is, now whenever in our body, जब कभी भी हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है, whenever any micro organism enters in, ठीक है, if it enters into our body, तो ये जनरली या तो टिश्यूज में रहेगा, ठीक है, या फिर ब्लड में रहेगा। Fine. Majorly when it is present in the blood, when this microorganism enters in the blood, अभी होता क्या है ना, this microorganism will have its own protein coat or whatever, ठीक है, तो इसका अपना खुद का प्रोटीन कोट रहेगा, अपना खुद का सेल वॉल रहेगा, जिसका अपना एक टिपिकल केमिकल नेचर होता है। Such type of chemical nature or its own protein coat may not be detected by our cells of immune system. कौन सा? There is one cell here known as प्लाज्मा बी सेल। तो ये प्लाज्मा बी सेल को जब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, नेचुरली दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एंटीजन। लेकिन ये एंटीजन एज इट इज ये प्लाज्मा बी सेल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। So what happens here is that helper T cell starts releasing certain protein chemicals or proteinaceous enzymes or protein chemicals, and these protein chemicals will start making a coat. So it starts coating the microbe. तो ये माइक्रोब के ऊपर एक टाइप का ऐसा लेयर तैयार हो जाता है, a protein which is identifiable by the plasma B cell, and this particular protein which then starts getting coated over the microbe will convert, or rather will definitely convert this microorganism into a identifiable antigen. क्योंकि एंटीजन अगर आइडेंटिफाई करना है तो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होना जरूरी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटीन कोड बनना चालू हो जाएगा ऑन व्हाट, ऑन द वॉल ऑफ द माइक्रोब, करेक्ट। एंड बिकॉज, अच्छा इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिस पर्टिकुलर माइक्रोब कैन बी आइडेंटिफाइड एज एन एंटीजन। इसके लिए दिस हेल्पर टी सेल विल वर्क लाइक अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, इट विल वर्क लाइक अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब ये माइक्रोब को एंटीजन बना के प्लाज्मा सेल्स के, प्लाज्मा बी सेल के सामने रख रहा है कि ये देखो ये एंटीजन आ गया। जैसे ही दिस माइक्रोब इज कन्वर्टेड इनटू एन एंटीजन, दिस will be identified by the plasma B cell, and against that antigen the plasma B cell will start producing antibody. तो एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देता है। जैसे ही एंटीबॉडीज बनाएगा, इट्स गोइंग टू फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विल इवेंचुअली विल किल द एंटीजन। तो यह एंटीजन को मार देगा, एंड दिस इज हाउ वी आर प्रोटेक्टेड। ओके, मैं जम गया? कुछ प्रॉब्लम है नेट से रिलेटेड? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, क्लियरली। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर।
हाँ, तो हमारे बॉडी को भी अगर कोई पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करना है ना, तो एक नेचर होना चाहिए ना उसका, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसको वो नेचर में लाने के लिए काम में कौन आ रहा है? दैट इज डन बाय हेल्पर टी सेल। तो वो हेल्पर टी सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कॉल दैट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सर मुझे नहीं समझा, क्या नहीं समझा? पूरा प्रोसेस ही नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? किधर प्रॉब्लम आ रहा है? तेरा ध्यान नहीं था इसका मतलब? नहीं सर, ध्यान था बट नहीं हाँ, समझा। प्रॉब्लम किधर आ रहा है? चलो फिर से एक बार देखो। हाँ, अभी माइक्रो, अभी कहाँ लिखूं मैं? पीछे लिखता हूं। कोई भी सर माइक्रो वहीं पे ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन कर दो। सुन ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो। नहीं, एंटीजन। When I say antigen, what is the nature of antigen? It's a type of प्रोटीन। प्रोटीन, बराबर है। अच्छा, जिस प्रोटीन को मेरा बॉडी आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडी बनाएगा, सेम प्रोटीन या माइक्रोब्स के सेल वॉल पे होता है क्या? नॉट ऑलवेज, नहीं। यहां तक ठीक है अनन्या? हाँ सर। हाँ, तो अभी हमारा सिस्टम को आइडेंटिफाई तो करना है ये एंटीजन को, उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये इन्फेक्शन लाएगा। So what this particular cell is going to do? So here the work of helper T cell will come. So what this helper T cell does is that helper T cell starts coating the microbe with a specific protein which can be identified by our immune system. यानी हमारे प्लाज्मा बी सेल उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Get in this? हाँ तो मतलब ये हेल्पर टी सेल ने क्या किया? ये हेल्पर टी सेल ने, सपोज अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, इसका अपना खुद का प्रोटीन है, लेकिन इसने क्या किया? ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना ही एक प्रोटीन कोड चढ़ा दिया, ऐसा। करेक्ट? जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल ने इसको आइडेंटिफाई क्या किया? एज एन एंटीजन। मतलब कैन आई से दैट helper T cell is preparing the microbe to be presented to कौन? प्लाज्मा बी सेल। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। तो वो क्या हो रहा है ना, जैसे थाली बना के भेज रहा है, यानी खाना बाहर से लेकर आए, लेकिन वो सारा खाना हम लोगों ने निकाल लिया बाहर, यानी किसी थैली से या बैग से, फिर उसको बर्तन में डाल के फिर प्लेट में अच्छे से सजा के किसी के सामने रख दिया। सो इट आईपीएस, इट द वर्क्स लाइक दिस। हाँ So it सर is समझा। presenting what to plasma B cell? It is presenting the antigen. Na? So we call this as antigen presenting cell. So that this cell, meaning ये वाला cell, will be identified by helper T cell, and this helper T cell against that will start producing what? Antibody. ठीक है? हाँ सर समझा। गुड। चलो अभी पहले ये थोड़ा सा, अभी आई डोंट नो हाउ यू विल राइट दिस, मैंने मेरे तरीके से लिखा है, आप अपने तरीके से लिखो। सर मतलब वो बी सेल का, यस, बी सेल को ये बताता है कि एंटीजन किधर है, तो बी सेल एंटीजन को आइडेंटिफाई करके क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। ओके, और जैसे ही एंटीबॉडी बनेगा, इट्स गोइंग टू फॉर्म अ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके आदित्य, 1-2 मिनट में बोलता हूं आपको ये। आदित्य इज आस्किंग टू एक्सप्लेन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट में समझाता हूं, फिर से आएगा आगे। पहले लिख लो, हो गया तो मुझे बोलो कि हो गया सर लिख के। वेरी गुड, आदित्य का डन। निशिता इज डन। सर टिश्यू और ब्लड के नीचे वो प्रोटीन के आगे क्या लिखा है? 1 मिनट। हाँ, नुपुर आइए, नुपुर। टिश्यू और क्या, किधर किधर किधर? हाँ, टिश्यूज एंड ब्लड के नीचे लिखा है प्रोटीन केमिकल्स which forms the coating, which forms the coating on the microorganism.
which is then called as an antigen identified by the plasma B cell. So we call this as antigen presenting cell. Finished? No, sir. Yes, sir. लिखो लिखो, होने के बाद बोलो मुझे जल्दी. Done? Yes, sir. No, sir, 1 minute. हाँ. Done, sir. यस, चलो हो गया. सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे दिस इज कॉल्ड एज ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, राइट? व्हेनेवर द एंटीजन प्रेजेंट एंटर्स इन आवर बॉडी और एनी माइक्रोब और एनी फॉरेन एजेंट व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी विल डिटेक्ट दैट एज एन एंटीजन. तो इसको मतलब ये इसमें से दो मेजर सेल्स थे. कौन से? एक था किलर टी सेल और दूसरा है हेल्पर टी सेल. ये दोनों के लिए स्टिमुलस कौन है? ये दोनों के लिए स्टिमुलस है द फॉरेन बॉडी, द एंटीजन. तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे. उसमें से हेल्पर टी सेल किसको एक्टिवेट कर रहा है? प्लाज्मा बी सेल को. तो मतलब प्लाज्मा बी सेल भी एक्टिवेट हो गया. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, ओके. सो बेसिकली ये पूरा ट्रिगर मैकेनिज्म मतलब टू एक्टिवेट द किलर टी सेल्स एंड टू activate the helper T cell, these cells they require an antigen or a foreign body, and helper T cell against that will start activating the plasma B cell. सर ज्वाइन लेट, कितने पेजेस छोड़ने हैं? बाप रे, कितने पेजेस छोड़ने हैं? बुशरा को बोलो. एक पेज. एक पेज. 1 page. एक पेज कौन सा वाला? एक ही साइड. रजिस्टर ना? हाँ, रजिस्टर का एक पूरा पेज और रजिस्टर थोड़ा का- सा लगेगा और रजिस्टर का एक पूरा पेज और थोड़ा सा और लगेगा. तो वो छोड़ के अभी चालू करो. बुशरा क्यों लेट आई तू? घर पे लेट पहुंची. 1.5 करेक्ट. सर ये ऊपर ग्रीन में लिखा वो एक बार एक्सप्लेन करो. अरे मैं ये बोल रहा था, हम लोग अभी कितने सेल्स है हमारे पास? देखो लिम्फोसाइट में कौन कौन से सेल्स है? सबसे पहला सेल आता है, फर्स्ट सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? हेल्पर टी सेल. हेल्पर सेल. दूसरा कौन सा है? किलर टी सेल.
तीसरा कौन सा है, सप्रेसर टी सेल, चौथा कौन सा है, मेमोरी टी सेल, बराबर है, ये 4 हो गए, यस करेक्ट। उसके बाद दूसरा जो आता है बी सेल, उसमें प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल, करेक्ट। मतलब टोटल कितने सेल्स हो गए, 6, यहां तक ठीक। यस उसमें से किलर टी सेल्स विल बी एक्टिवेटेड डायरेक्टली व्हेन एंटीजन एंटर्स इन, क्योंकि वो सीधा वो माइक्रोब पे ही काम कर रहा है। हाँ हेल्पर टी सेल विल आल्सो गेट एक्टिवेटेड व्हेन माइक्रोब एंटर्स इन। यस और हेल्पर टी सेल क्या करता है, हेल्पर टी सेल प्लाज्मा बी सेल को स्टिमुलेट करता है। कैसे स्टिमुलेट करेगा, बाय फॉर्मिंग और मेकिंग दैट एंटीजन डिटेक्टेबल एंड प्रेजेंटेबल टू द प्लाज्मा बी सेल, करेक्ट, बाय फॉर्मिंग अ कोड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया, तो मतलब प्लाज्मा बी सेल भी एक्टिव हो गया। यस और प्लाज्मा बी सेल ने क्या बनाया, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी से क्या, एंटीबॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ कंबाइन करना चालू किया। सो इट इज नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सर मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट इट डजंट मीन कि पहले ये काम करेगा फिर ये काम करेगा, सब लोग साथ में काम करते हैं। पर्पस इज ओनली वन, टू कीप आवर बॉडी अवे फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्शन। So they all will work together. हमारा इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम का काम ऐसे ही चलता है। So it is not that कि पहले हम लोग इसको बोलेंगे किलर टी सेल को पहले तुम जाओ और लड़ाई करके आओ, फिर किलर टी सेल थक जाएगा, फिर हेल्पर टी सेल बोलेगा अभी तू पीछे हट, तेरे में दम नहीं है, अभी मैं जाता हूं आगे। ऐसा नहीं होगा। So they all will work together. Both plasma B cell and killer T cell are doing, no, plasma B cell beta is forming antibody and killer T cell is forming a chemical substance called as perforin, and it will directly kill the microorganism. दोनों का पर्पस एक ही है, टू मेक द एंटीजन इनएक्टिव, लेकिन प्रोसेस अलग है। दिया समझा? यस सर। हाँ। तो अभी बचा कौन है, अभी बचा है हमारे लिए सप्रेसर टी सेल, करेक्ट, और उसके बाद मेमोरी वाले बचे। ठीक है, चलो किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया, ये सोहम। सर हेल्पर टी सेल को कैसे समझता है कि एंटीजन एंटर हो गया बॉडी में? बराबर है। तो अभी देखो क्या होता है, लेट मी टेल यू दिस, एक मिनट। हाँ, थोड़े से स्लाइड मुझे बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे, अदरवाइज जगह ही नहीं मिलेगी। जस्ट अ मिनट। हाँ, सर वो तो प्रोटीन कोटिंग की वजह से ही समझ जाएगा ना। नहीं, देखो क्या होता है ना, हमारा ये जो सिस्टम है, राइट, हम लोग बोलते हैं कि अभी थोड़ा अलग अलग टेंजेंट में मैं जा रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हम लोग बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। यस और नो? यस सर। बराबर है। हाँ। अच्छा, अभी एंटीजन एंड पैथोजन, गौरव इज सेम ना? Gaurav Mari, antigen and pathogen is same. The pathogen in our body is considered as an antigen or called as an antigen. Okay. Immune system हम लोग बात। Now when I say immune system is strong, my question is कि how this immune system develops? ये develop कैसे होता है? Is it there? Is it that it is there right since birth? ऐसा है क्या कि right since birth it is there? हाँ या ना? नहीं। नहीं, मतलब वी डेवलप दिस सिस्टम, राइट। तो हम लोग ये सिस्टम को एक्चुअली डेवलप करते हैं। नाउ व्हेन आई से डेवलप, मतलब क्या? वैक्सीन इज अ रॉन्ग आंसर, सानिका। डेवलप का मतलब क्या? हाउ इम्यून सिस्टम विल डेवलप? इम्यून सिस्टम विल डेवलप ओनली व्हेन द इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज, करेक्ट। यस और एंटीबॉडीज कब बनेगा? When bacteria and microbes enter the body. Meaning, can I say that when antigen enters in our body? यस सो जितना ज्यादा एंटीजन जाएगा उतने ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे। यस और नो? यस सर। एंड जितना ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगा उतना हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होने लगेगा? समझा? स्ट्रॉन्ग। यस, समझ में आ रहा है? यस सर।
And that is why India is a region and people from India are considered as highly adaptable. हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे ना, हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि we are exposed to so many different types of antigens that our body becomes, our immune system becomes so strong that there are so many antibodies already being produced. But that is not the case with people living in countries like US, UK या फिर Middle East. वो आपने कभी देखा होगा, आपके घर का भी एक्सपीरियंस रहेगा. सपोज यूएस में आपका अगर कोई रिश्तेदार रहता है जो पिछले 10 साल 12 साल 15 साल से उधर है, या 5 साल से उधर है, या 3 साल से उधर है, जैसे ही वो 2-3 साल बाद इंडिया में आता है ना, तो पहले 10 दिन तो बीमारी होता है. करेक्ट? या पहले 7 दिन तो वो बीमारी में ही जाते हैं उसके. तो ऐसा क्यों होता है? तो बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज वीक, because these people are not exposed to microorganisms and antigens. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ. So that is, this is the mechanism. Soham, Yes, sir, समझा. I hope you are getting this. This is the entire mechanism. अब ये सारे mechanism में कौन काम करेगा? तो ये सारे mechanism में all the T cells, all the B cells, then macrophages, then उसके साथ maybe you know some type of chemical substances, जैसे for example there is substance known as interleukins जो viruses के against काम में आता है. ठीक है? या फिर और कोई अलग अलग एंटीवायरल सब्सटेंसेस. इसके साथ साथ ये तो ब्लड में हो गया. ठीक है? ये तो हमारा ब्लड जैसा हो गया, नहीं ब्लड में आ गया. लेकिन बिफोर बॉडी क्या करता है ना, बॉडी विल नॉट अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर इन, यानी अंदर ही नहीं आने देगा. तो दैट इज डन बाय होम? दैट इज डन बाय स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. इंटरनल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द स्किन विल नॉट अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर इन. सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गया तो वी हैव फ्लूइड्स लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर माउथ से खाना खाते तो खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल किल इट. Saliva will kill this microorganism. Getting this? आंखों में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है इनसाइड द आई, नेचुरली करता ही होगा क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने सारे होते हैं. सो वी हैव टीयर्स. हमारे आंखों के ऊपर कंटिन्यूस टीयर फिल्म होती है, और ये टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है नोन एज लाइसोजाइम, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते रहता है. डोंट राइट दिस दिया, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा. But there are so many different things which are constantly working, जिसका एक ही पर्पस है, to keep our immune system strong and to develop our immune system so that we will not suffer from any disease. Final outcome क्या आता है? Final outcome आता है in the form of forming the antibodies. आखिरी में antibodies. अगर antibodies के against भी अगर response नहीं आता है, and if the antigen is not killed, or if the antigen becomes stronger than the antibodies, where the antibodies are getting annihilated or getting inactivated, then in that case we will suffer from disease. Clear? तो बीमारी तभी होता है, अदरवाइज बीमारी हम लोगों को इतना आसान है. अदरवाइज वी आर एक्सपोज्ड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आप जहां पे बैठे हो आपके घर में, वहां पे करोड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर. हियर आई एम सिटिंग इन द ऑफिस, crores of microorganisms are there. Are we do we suffer from any infection every now and then? No. अच्छा, अचानक घर में किसी को सर्दी हो जाती है, सब लोगों ने आइसक्रीम खाया लेकिन किसी एक को ही सर्दी हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर like you know intake triggering factor, that person's immune system is sensitive या फिर weak है, और बाकी के लोगों का अच्छा है, इसके लिए बाकी के लोग सेव हो गए, ये बीमार हो गया. Getting this? So every time we are getting exposed to microorganism, but every time we will not suffer from disease. सर तो ये तो सब, फिर हाँ, मतलब आपने बोला किसी एक ने आइसक्रीम खाया तो उसको सर्दी हुई, तो जो घर के बाकी के मेंबर है वो भी धीरे धीरे अफेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो कहाँ होते हैं? जरूरी नहीं है ना, कंपल्सरी नहीं है. अगर होते होंगे धीरे धीरे सारे अफेक्ट अगर आपके घर में, तो इसका मतलब सबका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है. सो वी नीड टू टेक केयर. बराबर है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि गए काम से अभी मर गए, ऐसा नहीं होगा.
सर इसलिए बोलते हैं कि कोविड के क्या है, बहुत बड़े बड़े मैसेज डालते रहता है, को तो भी श्रावणी है, अमन है, कितने बड़े बड़े मैसेज डालते हो रहे, वैक्सीन में एंटीजन ही होता है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज। अरे वैक्सीन में एंटीबॉडीज ही होता है, व्हाई कोविड, हर एक वैक्सीन में एंटीजेंस ही होते हैं, बट दीज आर ऑल वीक एंड हीट किल्ड एंटीजेंस, ठीक है। एंड वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही वो है। सर सो कोरोना का भी नेसेसरी नहीं है कि हम लोग उसके माइक्रोब से अगर कांटेक्ट में है तो हमेशा ही होना ही चाहिए इन्फेक्शन। कोई जरूरी नहीं है ना, कितने सारे लोग हैं जिनको हुआ नहीं है, मुझे अभी तक हुआ नहीं है। हाँ बट मतलब हम उसी माइक्रोब के कांटेक्ट में आए ये पता नहीं है ना। कैसे पता चलेगा ना आपको, आए भी होंगे, मुझे हो भी गया होगा, आई मस्ट हैव बीन इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस बट आई डिड नॉट सफर फ्रॉम डिसीज बिकॉज प्रॉब्ली माय इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग। ओके। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो एक छोड़ के दो दो बार बीमार गिर गए, कुछ लोगों का डेथ हो गया। समझ में आ रहा है ना कि हाउ हाँ द सर। सिस्टम रिएक्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो ये पूरा सिस्टम है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है, तो ये ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन पार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जिसमें आपका स्किन भी आएगा, सलाइवा भी आएगा, टीयर्स भी आएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा, अलग अलग टाइप के सेल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, इंटरल्यूकिन्स, एंटीवायरल सब्सटेंसेस, कितना सारा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बहुत सारी चीजें आती है। They all will constitute together to form an immune system, जो हमारे बॉडी में राइट फ्रॉम हेड टू टो हर जगह पे है, इंक्लूडिंग lymph nodes for that matter. Tonsils considered as the gatekeeper ना, ठीक है। Yeah, they trap the microbes through Yes, the they mouth. trap the microbes. तो वो भी एक तरीके से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ही हो गया बॉडी का। फाइन, तो ये ना, हाँ वो बोलो। आपने स्किन एंड वो कुछ लिखा है ना, वो मैं लिखने के चक्कर में मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं समझा। शाबाश, इसके लिए मैं बोलता हूँ जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब आप सुनो, लिखो मत। एक्सप्लेनेशन यही दिया मैंने अभी, मैं वापस सब कुछ रिपीट किया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है जो सामने स्क्रीन पे है। हाँ Yes, correct. What you are saying is right, Gaurav. Not all diseases are caused by pathogen. That is why not every person will suffer from that disease which is not caused by pathogen. There are some diseases which are genetic. So is it necessary that every person in that family should suffer from that genetic disease, Gaurav? हाँ, तो बस अपना वही है, ठीक है। तो वो तो अच्छा है ना, तो मतलब इट इज लाइक इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव, तो वो बीमारी नॉन इन्फेक्टिव है, टेंशन नहीं है, एक से दूसरे को नहीं होगा। तो उसमें आपका कैंसर आ सकता है, उसमें आपका लाइक यू नो डायबिटीज मेलाइटिस आएगा, या फिर हाइपरटेंशन आएगा। ऐसा होता है क्या कि किसी एक हमारे घर में किसी को कैंसर हुआ है और मैंने उसको हाथ लगाया तो मुझे भी कैंसर हो गया? पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं है ना। किसी को जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है किसी को, और उसने अचानक से जोर से छींक लिया और छींकने के बाद मुझे ब्लड प्रेशर हो गया बिकॉज आई गॉट इन्फेक्टेड, नॉट पॉसिबल। सो इट इज लाइक कंटेजियस, नॉन कंटेजियस, इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव, ऐसा होता है ना, टाइप्स ऑफ डिजीजेस बेस्ड ऑन द कॉज। तो बहुत सारा अलग अलग चीजें हैं, बट माय पॉइंट इज कि बॉडी इतना सारा एंटीबॉडीज बनाते रहता है, और हम लोगों ने इसका हिसाब भी किया था ना, इफ यू रिमेंबर द एंटीबॉडीज विच आर फॉर्म्ड आर अराउंड 2000 पर सेकंड। एक सेकंड में 2000 एंटीबॉडीज बनते हैं। तो आप अपना एज कैलकुलेट करो सेकंड में टिल डेट और मल्टीप्लाइड बाय 2000, इतने एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपके बॉडी में बन चुके हैं। यस, हम लोगों ने एक क्लास में किया था, वेरी गुड, भक्ति को याद है ये, राइट। तो जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 इंटू 2000, तो इट्स लाइक 1,20,000 पर मिनट। 1 मिनट में इतना एंटीबॉडीज बनेगा, है ना। तो वैसा अगर हम लोग और बनाएंगे, जैसे 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 16, तो 72 लाख एंटीबॉडीज बनेंगे 1 घंटे में, पर आवर। ऐसे 24 करोगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 1 दिन आपको मिलेगा। फिर आप कैलकुलेट करो आपका उम्र डे में, मल्टीप्लाई दैट विद दिस फिगर व्हिच इज गोइंग टू कम। तो इतना सारा एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपके सिस्टम में बना हुआ है और वो बनते रहेगा। तो ये क्यों होता है? बिकॉज बॉडी का एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, द पर्पज इज ओनली टू सेव बॉडी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इसके लिए सब फाइट चलते रहता है।
ठीक है, उसमें से पर- हम लोगों ने देखा, हाँ क्या हुआ, आपने बोला मतलब बचपन से एंटीबॉडीज बनते रहते हैं, तो जो पर्सन अभी कोविड इन्फेक्शन हुआ था उनको, तो उनके अंदर के सारे मर गए होंगे क्या एंटीबॉडीज, फिर उसके बाद उनको इन्फेक्शन हुआ होगा? उनके अंदर क्या, उनके अंदर के सारे एंटीबॉडीज मर जाने के बाद उनको इन्फेक्शन हुआ होगा क्या? उनके बॉडी में के एंटीबॉडीज आर वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल दैट और इन मेक दैट पर्टिकुलर वायरस इनएक्टिव। मतलब काउंट पे कुछ डिपेंड नहीं, सिर्फ नहीं 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 नहीं, इट इज जस्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंटीबॉडी, कितना वो एंटीबॉडी एंटीजन को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यस सर। है ना, बिकॉज एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे रहता है, शट अप, ओके, ये ऐसे स्ट्रक्चर रहता है इसका, यहाँ पे जॉइंट रहेगा, इधर जॉइंट रहेगा, इधर जॉइंट रहेगा, इधर जॉइंट रहेगा, तो ये प्रोटीन्स है, ओके, तो ये सारे प्रोटीन्स है, दिस इज कॉल्ड एज द you can say this is long chain, this is short chain of antibodies. Actually I must draw it like this, that will be better for you to understand. ये एक long chain है और यहाँ पे बाहर रहता है इसका short chain, और ये दोनों एक दूसरे के साथ attached है, ठीक है, तो somewhere here the antigen will start getting stuck, इधर ऐसे antigen stuck होना चालू हो जाएगा, it's a Y-shaped structure, okay? ये वाला मत ड्रॉ करो, ये वाला कर सकते हो, करना है तो चॉइस है आपका, तो ये इस तरीके से रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज में आएगा ये, ठीक है। अभी इसमें भी क्या होता है ना, दिस ऑल्सो हैज द लॉक एंड की मैकेनिज्म, सपोज इफ आई मैग्नीफाई दिस रीजन, तो ये जो एंटीबॉडी है ना, तो जैसे यहाँ पे किस तरीके से आएगा, सो इट इज लाइक दिस, सपोज अगर यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर है, जो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना लिया इसने, फिर यहाँ पे ये दूसरा स्ट्रक्चर है लाइक दिस, तो ये इसने दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया, सो द एंटीजन विच इज गोइंग टू गेट अटैच्ड विल हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो ये एंटीजन भी हमारा इसी तरीके से रहेगा, and this is going to form the antigen antibody complex, so this is called as lock and key mechanism. तो वो जो मैं बोल रहा था ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम होता है कि इसको इस तरीके से प्रेजेंट करो, so that this antibody will detect this antigen and will start forming a complex. Sir, though I wasn't having symptoms of critical corona yet I was tested positive last year, why so like that? Because इसका मतलब संजीवनी, you were just the carrier of that particular microorganism, but you did not suffer from disease. Being COVID positive does not mean that you are suffering from corona. COVID-19 is an infection, corona is a disease. फर्क समझ में आ रहा है संजीवनी? हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि वी आर कैरिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है कि मुझे बीमारी नहीं हुआ, सो आई डिड नॉट सफर फ्रॉम एनी साइंस एंड सिम्टम, जैसे HIV का भी होता है ना, पर्सन इज HIV पॉजिटिव बट मे नॉट सफर फ्रॉम एड्स. So the rule is any person who is suffering, for any person who is detected with this infection of virus, HIV positive रहेगा, that doesn't necessarily mean that the person is suffering from AIDS, because being infected is different and suffering from disease is completely different. ठीक है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आदित्य इस तरीके से बनेगा, तो इसके लिए भी अपना इनके खुद के ऐसे केमिकल एफिनिटीज होते हैं, सो दिस केमिकल्स विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, जैसे ही ये एंटीबॉडीज ने, मतलब एक साथ एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन्स को ब्लॉक कर सकता है, 2, ठीक है, तो उतने सारे एंटीबॉडीज बनते रहेंगे, एंड दैट इज हाउ दिस, अभी इसने क्या किया, ये एंटीजन को इनएक्टिव ही बना दिया, पकड़ के रखा ना, तो एक्टिविटी ऑफ द एंटीजन हैज स्टॉप्ड एंड दैट इज हाउ द एंटीजन विल बी किल्ड. सर ठीक है, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं रहती क्या आगे का वर्क करने के लिए? एक्टिविटी बंद हो जाएगा ना, एक्टिविटी इज स्टॉप्ड,
ठीक है, द एंटायर एक्टिविटी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म और दिस पर्टिकुलर एंटीजन इज स्टॉप्ड, बंद हो गया, अभी आगे कुछ होगा नहीं। क्लियर? नहीं सर। हाँ, सर मुझे ऐसा कहना था कि ये एंटीबॉडी ने उसको ब्लॉक कर लिया, तो हाँ। वो उसका एक्टिविटी स्टॉप हो गया, पर उसके वो डाई कैसे होगा? तो एक्टिविटी बंद हो गया तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना। पर अगर क्यों? वो अपने लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही नहीं कर पाया विद इन द सेल, तो कैसे जिंदा रहेगा? मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, उसके बाद वो मर जाएगा, ऐसा? Not necessary energy, that is why I am saying when चलो metabolic activities will stop, ऐसा ओके। पकड़ के चलो। when I say metabolic activities मतलब metabolic activities, तो ये बंद हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, फाइन। चलो अभी क्या हुआ है ना, अभी ये हुआ है कि किलर टी सेल ने तो डायरेक्ट काम करना चालू किया और सीधा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया। हेल्पर टी सेल ने आइडेंटिफाई किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसने स्टिमुलेट किसको किया? प्लाज्मा बी सेल को, सो दैट प्लाज्मा बी सेल विल स्टार्ट फॉर्मिंग द एंटीबॉडी। अभी तीसरा सेल आता है, दैट इज सप्रेसर टी सेल। तो सप्रेसर टी सेल क्या करता है ना, एज आई सेड नो, ये दोनों सेल्स एक्टिव रहेंगे when the microbes are entering in. The suppressor T cell will control the activity of killer and helper T cell. मतलब whenever required it will stimulate this cell so that their activity will be more, whenever required it will inhibit their activity or will control their activity. So that is the work done by the suppressor T cell. मतलब suppressor T cell दोनों सेल्स को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने काम करना चालू किया, लेकिन वो काम करते समय कोई तो होना चाहिए जो मेरी तरफ नजर रखेगा और बोलेगा कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, थोड़ा आराम से कर, थोड़ा फास्ट कर। सो दैट टाइप ऑफ कंट्रोल, तो सप्रेसर टी सेल का वो काम होता है। तो सप्रेसर टी सेल विल स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन किलर एंड हेल्पर टी सेल स्टार्ट्स वर्किंग। इज इट क्लियर? अगर हेल्पर और किलर टी सेल ने काम नहीं किया तो सप्रेसर टी सेल विल नॉट वर्क। सप्रेसर, इसलिए मैंने अमन क्या बताया, सप्रेसर टी सेल विल वर्क ओनली व्हेन किलर एंड हेल्पर टी सेल विल स्टार्ट फंक्शनिंग। मतलब सप्रेसर टी सेल को पता ही नहीं है कि एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या है वो किसको पता है? किलर टी सेल्स को और हेल्पर टी सेल्स को। उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है सप्रेसर टी सेल। ठीक है, समझा? यस अभी बचा कौन? अभी बचा कौन? बचा है आपका मेमोरी टी सेल और दूसरा बचा है आपका मेमोरी बी सेल। अब ये दोनों का एक ही काम है। क्या काम है? जो भी एंटीबॉडी बना है ना बॉडी के अंदर, दैट विल बी मेमोराइज्ड बाय दीज सेल्स। मतलब ये सेल्स क्या करेंगे? ये एंटीबॉडी को मेमोराइज करके रखेंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इन, मेमोरी टी सेल विल गेट एक्टिवेटेड एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग दिस एंटीबॉडी इंस्टेंटली। तो ये पूरा, ये जो पिछले वाला मैकेनिज्म हमने देखा ना, वो मैकेनिज्म ही नहीं होगा सेकंड एक्सपोजर के टाइम पे। गेट इन दिस? समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम XYZ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया है, ये फर्स्ट टाइम जब किसी पर्सन के बॉडी में जाता है तो इट्स गोइंग टू फॉर्म दैट एंटायर रिएक्शन। मतलब हेल्पर टी सेल उसको डिटेक्ट करेगा, फिर वो स्टिमुलेट करेगा प्लाज्मा बी सेल को, फिर प्लाज्मा बी सेल विल स्टार्ट फॉर्मिंग द एंटीबॉडी, फिर ये बनाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और उसके बाद फिर दिस एंटीजन विल बी किल्ड। बराबर है? ये फर्स्ट टाइम हुआ एंड द पेशेंट इज बेटर। यहां तक ठीक? यस सर। अच्छा, लेकिन ये जो एंटीबॉडी बना है ना, इसको मेमोराइज किसने किया? इसको मेमोराइज किया ये सेल ने। याद रखा कि ऐसा कुछ एंटीबॉडी बना था। सपोज आफ्टर 2 months सेम XYZ ऑर्गेनिज्म एंटर्स,
तो नेचुरली ये मेमोरी टी सेल को पता है कि इसका एंटीबॉडी ऑलरेडी बना है, तो सीधा ये रिएक्शन हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला होगा ही नहीं, समझा? Yes, sir. गुड। तो मतलब फर्स्ट एक्सपोजर जब होता है तो बॉडी विल टेक एटलीस्ट 72 आवर्स टू फॉर्म द एंटीबॉडी, लेकिन सेकंड एक्सपोजर के बाद सब्सिक्वेंट एक्सपोजर will take few hours. Within few hours, the antigen antibody complex will be formed and the person will be better. ठीक है? So this is the work done by the memory T cell. तो ये memory T cell का काम होता है to memorize. इसको याद रखने का काम कौन कर रहा है? इसको याद रखने का काम कर रहा है memory T cell, and same will be done by antibodies will be memorized even by B cell. लेकिन फर्क क्या है दोनों में? T cell will memorize these particular antibodies from few months to lifetime. ठीक है, के लिए हो सकता है, whereas memory B cell will have its activity only for few months. मतलब मेमोरी बी सेल में अगर कुछ मेमोराइज होता है तो इट विल बी ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. मेमोरी टी सेल में जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट फॉर लाइफ टाइम. सो वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज बनता है उसका मेमोरी कौन क्रिएट कर रहा है? मेमोरी टी सेल. इतना याद रखो, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए होता है ना कि एक बार वैक्सीन दे दिया तो बाद में बीमारी नहीं होगा. सो इट्स अ लाइफ टाइम कंडीशन. सो दैट लाइफ टाइम मेमोरी इज फॉर द मेमोरी टी सेल का काम. टेम्पररी मेमोरी इज द वर्क डन बाय मेमोरी बी सेल. ये कैसे पता चलेगा? तो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स होते रहेंगे, बार बार एक्सपोजर होगा, क्योंकि एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि XYZ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर आया वो XYZ करके ही आएगा. उसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो ये बन के आएगा XYZ1. सो विल दिस एंटीबॉडी बी ऑफ एनी यूज? No. नो. तो नेचुरली मुझे नया एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा. तो ये एंटीबॉडी जो याद किया जा रहा है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बी सेल वाला, मतलब बी सेल उसको मेमोराइज करना चालू कर देता है. सो इट बिकम्स अ टेम्पररी मेमोरी. तो कुछ दिनों के लिए रहेगा, उसके बाद बॉडी उसको भूल जाएगा. लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनमें म्यूटेशंस होता नहीं है, सो इट रिमेन्स एज इट इज. तो उनका जो मेमोरी बनेगा वो दैट इज डन बाय मेमोरी टी सेल. ठीक है? Sir, so the memory cells will not die? नो, मेमोरी सेल्स का भी कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू रहता है. जैसे WBCs का ओवरऑल लाइफ स्पैन फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स है ना, तो उसमें से मेमोरी टी सेल का लाइफ स्पैन कैन बी फॉर फ्यू मंथ्स टू ईयर्स और मे बी लाइफ टाइम. मेमोरी बी सेल विल हैव अ वेरी शॉर्ट स्पैन. लेकिन नया सेल बनेगा तो वो नया सेल को स्टिमुलस भी इधर से ही मिलेगा. Sir, so if the new cell is made, it will get the memory of the earlier cell. yes, it will always. ठीक है, ट्रांसफर होते रहेगा वो. Yes. सर मेरे लिम्फ नोड्स स्वेल हुए थे 2020 में, एंड देन चलो ये लिख लो, एंड देन 2021 में वापस स्वेल हो गए थे. डज दैट मीन मेमोरी बी सेल? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते हैं. वी नीड टू फाइंड आउट इशिता कि ऐसा क्यों होता है. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सच swellings or overgrowths will take place, so that you need to find out कि what is the reason for such swelling of the lymph nodes. It is not related to any memory cells or anything. Okay, so don't worry about that. So when a microbe enters our body after mutating, so at that time only memory B cell will store its memory, or even memory T cell will store the mutated. Memory T cell will always be on priority. तो पहले वो स्टोर करेगा, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस चेंज करके आया है तो नया एंटीबॉडी बनाना पड़ा, तो पहला वाला वो भूल जाएगा. समझ में आया ना? तो वो कन्वर्ट होना चालू हो जाता है मेमोरी बी सेल में. Yes, sir, got. हाँ, यस. मेमोरी टी सेल के कुछ ऐसा होता है विच कैन हैव अ परमानेंट मेमोरी. बी सेल का टेम्पररी मेमोरी. करेक्ट, यू आर राइट. ठीक है, सब लोग ब्रेक मांग रहे हैं. सर ब्रेक लेने का क्या? सर ब्रेक दे दो, सर ब्रेक. नो सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर. सब लोग नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग नो बोल रहे आज. अरे वाह, सर आज टाइम पास ज्यादा हुआ ना क्लास में, इसीलिए. हाँ, मजा आ रहा है बोल रहे हैं अमन आज. आई नो.
मत दो ब्रेक. Sai Prasad is also, Sai Prasad is saying मत दो ब्रेक. श्रुति is begging. श्रुति क्या हो गया? श्रुति को भूख लगी है शायद. हो गया लिख के ये? चलो आगे बढ़े. नहीं नहीं 1 hour हो गया. 1 hour भी नहीं हुआ बोल रही लोहिता. इट इज मोर देन 1 hour नाउ. सर हाँ अगर मतलब आपने बोला कि म्यूटेशन के बाद अगर आता है वही सेम वायरस और अगर नई एंटीबॉडीज बनानी पड़ी तो पहले वाले का वो भूल जाएगा मेमोरी सेल. लेकिन अगर बाद में वापस अगर म्यूटेशन के पहले वाला वर्जन आया तो फिर से एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी. ये रिपीट होगा प्रोसीजर वो. ठीक Till है. the time body is identifying that particular organism entering repeatedly, फिर वो मेमोरी टी सेल का काम होगा उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना. तो वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है ना. हाँ ओके. हाँ. और फॉरेन कंट्रीज में, बाहर के देश में, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोजर्स बहुत कम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बिकॉज एनवायरनमेंट इज वेरी क्लीन, या फिर व्हाटएवर आप बोल सकते हो, हाइजेनिक कंडीशंस और ये सब, उसके कारण बहुत ज्यादा एक्सपोजर्स नहीं है. इसके लिए उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है. सर तो अच्छी बात है या बुरी बात है कि हमारे कंट्री में ज्यादा पोल्यूशन है? That you decide, because everything has its pros and cons. That I will not comment. है ना. नहीं तो आप अपना क्या करोगे, घर में कचरा करना चालू करोगे, या फिर कचरा ऐसे पड़ा रहेगा, फिर मेरा नाम लोगे. सर ने बोला था जितना कचरा रहेगा उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना मेमोरी, उतना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग. सर मतलब आप बोल रहे हो कि अच्छी बात है. हाँ वही मुझे लगा ही था, अमन ने बोला ही, अच्छी बात है सब चीजें गंदी रखना. सब चीजें जो गंदी रखता है उसको हम लोग गंदा इंसान बोलते हैं. ऋतुजा ब्रेक नहीं मिलेगी. हो गया. आगे बढ़े. लोहिता इज आस्किंग कि सर वो 2 months में वैक्सीन देते हो वो क्या होते हैं? अब ये ब्लड सेल्स है, ये पता है अपने को. ठीक है. तो वो 2 months के बाद वैक्सीन देते हैं ना. दीज आर ऑल अलग अलग टाइप के वैक्सीन होते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज वन वैक्सीन कॉल्ड एज DPT, डिप्थेरिया पर्टिसिस टिटानस. देयर इज वन वैक्सीन कॉल्ड एज MMR, मीजल मम्स एंड रूबेला. ठीक है. देन देयर इज वन वैक्सीन कॉल्ड एज BCG, बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्यूरिन, फॉर ट्यूबरकुलोसिस. Then we have oral polio vaccine, OPV, है ना. तो ये मेन वैक्सीन है अगेंस्ट ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. इसके साथ फिर साइमल्टेनियसली यू कैन गिव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस, वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, वैक्सीन फॉर न्यूमोनिया, वैक्सीन फॉर कॉलेरा, लाइक दिस. ओके. और ये सब वैक्सीन का होता है बूस्टर डोज. बूस्टर डोज का मतलब ही होता है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है. इसके लिए जॉन्डिस के लिए हेपेटाइटिस, वही अनन्या, हेपेटाइटिस कॉजेज जॉन्डिस ना. जॉन्डिस इज अ सिम्टम नॉट अ डिसीज. एड्स के लिए किधर वैक्सीन है गौरव? ढूंढ के निकालो तुम लोग अभी एड्स के लिए वैक्सीन. समझा ये? सो दिस आर ऑल द वैक्सीन. किसी ने मुझे पूछा था ये, किसने पूछा था ये मुझे? हाँ लोहिता, समझा आपको? Yes, sir. हाँ. तो ये ना स्टैंडर्ड है ये. तो ये बचपन से देना पड़ता है बिकॉज दिस आर द डिसीजेस व्हिच आर कंसीडर्ड एज कंपैरेटिवली लाइफ थ्रेटनिंग. सो वी नीड टू बी प्रोटेक्टेड राइट सिंस द बर्थ. इसके लिए ओके. चलो तो ये तो हो गया हमारे अलग अलग टाइप के सेल जो हम लोगों ने पढ़े. मोनोसाइट पढ़ा है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, आरबीसी, प्लेटलेट. तो ये सब हुआ है. लेकिन अभी प्लेटलेट बाकी है हमारा. राइट. Very good. Gaurav is saying that he is going to find a vaccine for HIV. I am so happy. Size sequence, हाँ size sequence था वो, बराबर है श्रावणी. ठीक है. चलो प्लेटलेट्स देखते हैं लास्ट पार्ट, और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज ABO, ब्लड ग्रुपिंग. तो थोड़ा वो भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं,
There is one group called as ABO blood group. There is something called as Bombay blood group. There is something called as MNS blood group. तो ये सब क्या होता है, that we are going to study. Okay. पहले हम लोग थोड़ा प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं. We all know what the platelets are. Platelets are called as the thrombocytes. ठीक है, they are known as the thrombocytes. The immature form of platelets are known as the megakaryocytes. Thrombos का मतलब आता है clot और साइट का मतलब आता है, चलेगा देख लो एक बार, हो गया चालू? और काइटोस का मतलब आता है सेल. ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ सेल विच इज नोन टू फॉर्म द क्लॉट. मतलब दिस सेल विल बी यूजफुल व्हेन, this cell will be useful only at the time when the person suffers from any injury or when there is blood loss. अच्छा, साइज सीक्वेंस का स्लाइड बताओ ना, अनन्या बोल रही है. ये देख, डन सर. Okay, so that is the work done by the thrombocytes. We have already discussed they are all non-nucleated, but immature form of thrombocyte is called as megakaryocyte, and megakaryocyte is basically nucleated. This megakaryocyte will undergo fragmentation. इसका fragmentation होता है, and then each fragment develops into a platelet. हर एक फ्रैगमेंट का बनता है प्लेटलेट, एंड दीज फ्रैगमेंटेड पार्ट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड. सो दे आर गोइंग टू बी नॉन न्यूक्लिएटेड, राउंड एंड बायकॉन्वेक्स. मैंने बताया था देखो, पूरी की तरह होता है ऐसा. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर. सो इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, राउंड एंड बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर. ओके, so this is how we see size sequence का क्या होगा. that will be interesting. what happened भक्ति ने कुछ बोला, only that will be interesting. I did not see the messages. हाँ, last slide. भटकी. अच्छा, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब ठीक है, हो गया, finished. Yes, sir. हाँ, एक मिनट, मैं जस्ट पानी ला रहा हूँ. सर, I was talking. Yeah. Study of blood groups is going to be interesting. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ व्हाट द थ्रोम्बोसाइट्स और द प्लेटलेट्स आर. नाउ ब्लड सेल्स में ऑफ कोर्स आरबीसीज होता है, डब्ल्यूबीसीज होता है और प्लेटलेट्स होता है. दे आर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द ब्लड. सबसे छोटे ये सेल्स होते हैं. their diameter is basically 2.5 to 5 micrometers or microns. so that is the diameter. एकदम छोटा सेल होता है, right? 2.5 to 5 micrometers or microns. This is like micron का unit है, micrometers आप इसको कर सकते हो. Okay, now the fragments which are formed from the large cells, that large cell is known as the megakaryocyte. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. which is synthesized in the bone marrow. कौन से bone marrow में होता है? so generally it is in the red bone marrow. तो रेड बोन मैरो में ये बनेगा, एंड these cells are going to be large and nucleated, called as megakaryocytes. When they start becoming mature, these megakaryocytes will lose the nucleus, will undergo fragmentation, and each fragment now develops into a thrombocyte or a platelet. ठीक है, तो हर एक फ्रैगमेंट से बनेगा प्लेटलेट. एक मिनट जरा, हेलो.
स्टूडेंट जस्ट गिव मी अ मिनट ना, मैं मेरा ये स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ. आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क. ओके, जस्ट 2 minutes. आई एम कमिंग बैक. डोंट गो एनीवेयर. जाके सुसु करके आ अमन, अगर पानी ज्यादा पिया है तूने तो. क्या करने का यार तुम लोगों को, ब्रेक लेके. अभी 5:30 बजे खत्म होएगा अपना लेक्चर. सर 5-8 तक ब्रेक दीजिए. 5-8 तक ब्रेक दे दूं, लेकिन क्या अभी 5:30 बजे लेक्चर खत्म होएगा. सर कैन यू शो मी स्लाइड्स ऑफ प्लेटलेट्स. सर बोन मैरो के कितने टाइप होते हैं? 2 ही होते हैं पीयूष, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. ये प्लेटलेट के स्लाइड्स है ऋतुजा. ये पहला ऋतुजा. Done, sir. हाँ, ए तू डिस्कनेक्ट हो गई थी तो तेरे को माइक किसने दिया फिर? ये दूसरा स्लाइड है. साई प्रसाद इज सेइंग सर इनको ब्रेक दे दो, मुझे सब गाली दे रहे. हो गया ऋतुजा? हाँ सर. 6 बजे तक नहीं है अमन, 5:30 बजे तक है क्लास, 3:30 से 5:30. दिस इज नेक्स्ट स्लाइड. हो गया ऋतुजा? जैसे मैं तुम लोगों का लेक्चर लेता हूँ ना अलग से औरंगाबाद वालों का, वैसे यहाँ पे नासिक वालों का भी अलग से लेक्चर लिया जाता है, जो आज उनका है 6 बजे. बेचारे परेशान है. Okay, so the mechanism by which the thrombocytes are formed here is known as thrombopoiesis. ठीक है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है फ्रैगमेंटेशन का और उसका, so this entire mechanism is called as thrombopoiesis. Thrombopoiesis का मतलब synthesis of thrombocytes और synthesis of platelets. So this is one important mechanism which is seen in the platelets. लेकिन as I said, platelets का काम, platelet has only one function, that is to form the clot. Clot formation is the work done by them. The lifespan of the thrombocytes is approximately 5 to 10 days. मतलब within 10 days, the new, rather continuously new thrombocytes are getting formed and the older ones are getting destroyed. तो इनका destruction किधर होगा? So naturally it will be done in the liver. Total count of thrombocytes is 2.5 to 4.5 lakh per mm cube. That is the count. This is a normal count, both in male and female. अलग अलग नहीं होता है. So it is 2.5 to 4.5 lakh per mm cube. मतलब सबसे ज्यादा जो cells होते हैं वो हमारे blood में, that is RBCs. Second largest is platelets and the third one is the WBC.
ठीक है. So this is how largest number, size नहीं, number के हिसाब से बोल रहा हूँ. So this is the normal count of the platelets. Let us understand the function कि blood clotting कैसे होता है. Life span is 5 to 10 days. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा. ये वाला नहीं, इसका आएगा वो लाइफ स्पैन वाला. 5 to 10 days है लाइफ स्पैन. Finished? यस सर. Okay. Now let us understand the exact function कि actually blood clotting या फिर blood coagulation होता कैसे है. How this clotting mechanism takes place here, chemical reaction. ठीक है. Now, whenever the blood is flowing inside the blood vessel where there is no injury being done to the blood vessels, still the blood will not clot. Platelets भी इसके साथ रहते हैं, but platelets will not form a clot here. What is the reason for this? Heparin. Huh? Heparin. Very good. It is only because of the fact that within the blood we have an anticoagulant substance, and that anticoagulant substance is called as heparin. ठीक है. So there is one important anticoagulant called as heparin, और उसके साथ आता है और एक that's called as antithrombin, which is released in the plasma. तो ये प्लाज्मा में बनते रहता है. ठीक है. और heparin is secreted by whom? Heparin is secreted by basophil. Correct? So these are the two anticoagulant substances, heparin and antithrombin. Antithrombin is basically released or secreted within the plasma only. इसको कोई अलग से सेल नहीं बनाएगा, लेकिन प्लाज्मा में ही बनेगा. Heparin will be secreted by basophil, and both will work for anticoagulation, meaning will not allow this blood to clot whenever the blood is flowing through a normal intact blood vessel. But for some reason, if there is an injury, अगर इंजुरी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल को आता है इंजुरी. किसी का तो भी माइक चालू है. लोहिता, वेरी गुड. तो सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल को हो गया एक इंजुरी. सो व्हेनेवर देयर इज अ कट व्हिच टेक्स प्लेस टू द ब्लड वेसल, देन द ब्लड विल स्टार्ट ओजिंग आउट. ठीक है. The moment the blood starts oozing out, it sends a stimulus to the platelets, and the platelets will start aggregating around this injured site, thrombocytes. ठीक है. So the thrombocytes will start aggregating. Aggregate का मतलब आता है जमा होना. So they start getting aggregated at the site of injury by forming thus they form the platelet plug. अभी प्लेटलेट प्लग क्या करेगा? विल रिड्यूस और स्टॉप द फर्दर ओजिंग ऑफ द ब्लड. मतलब ब्लीडिंग बंद हो जाएगा. लेकिन अभी तक क्लॉट बना है क्या? नहीं, क्योंकि जब ये प्लेटलेट यहां से निकल जाएंगे फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाएगा. तो सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या करेगा? खुद ही जमा होना चालू हो जाएगा एंड विल स्टॉप द फर्दर फ्लो ऑफ द ब्लड आउटसाइड द बॉडी. यहां तक ठीक? हेलो. Yes, sir. चलो, ये हो गया. नेक्स्ट, now what these platelets are going to do is that these platelets, same platelets at the injured site, will start releasing a chemical substance known as thromboplastin. ठीक है. And this particular enzyme released by platelets will initiate the formation of another enzyme called as prothrombinase. Thromboplastin किसने रिलीज किया? Thromboplastin रिलीज किया. It is done by released by the platelets. When it is released? Only when the tissue is injured. If the tissue is not injured, then thromboplastin will not be released. Moment the thromboplastin is released, it initiates the formation of an enzyme called as prothrombinase. अभी नाम से ही पता चलता है. Pro का मतलब primitive. Thrombinase. Any word ends with ASE is an enzyme. So naturally this prothrombinase will convert what? This prothrombinase in the presence of calcium. ठीक है? In the presence of calcium will convert the inactive or insoluble prothrombin, which is a type of plasma protein, into a thrombin, which is an active substance. क्योंकि prothrombin
ऑलरेडी प्लाज्मा प्रोटीन करके है हमारे ब्लड में. So this plasma protein becomes active in the presence of prothrombin and prothrombinase and calcium, so that prothrombin is now converted into thrombin. Now what this thrombin is going to do? Thrombin will convert the fibrinogen, which is soluble plasma protein, into an insoluble fibrin. Okay, fibrinogen here is converted into fibrin. This is in the presence of potassium as well, or rather and vitamin K. ठीक है, तो ये दोनों की मदद से fibrin will be formed. And what is fibrin? Fibrin is nothing but a type of meshwork. ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये प्रोटीन नेटवर्क या फिर मेशवर्क ऐसा बनाना चालू करेगा. सो इट एनमेशेस द प्लेटलेट्स, द ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा. तो पूरे ये सबको अपने जाली में ऐड कर देता है, स्टक करा देता है, बिकॉज ऑफ विच द क्लॉट विल बी फॉर्म्ड. प्रोसेस समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज हाउ द क्लॉटिंग मैकेनिज्म विल टेक प्लेस. तो वो क्लॉट के अंदर क्या रहेगा? वो क्लॉट के अंदर रहेगा मेशवर्क ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी फाइब्रिन. उसके साथ कुछ प्लेटलेट्स रहेंगे और कुछ ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, जिसको कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बाद में वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, जो स्किन के ऊपर लेयर आ जाता है, विच इज गोइंग टू बी ब्राउनिश इन कलर, जिसको कॉमन लैंग्वेज में मराठी में भी कॉल दैट एज खपली. Yes, and this clot formation, Shravani, will take place near the cut. जो यहाँ पे सपोज अगर इंजुरी हुआ है तो इधर ऐसे एक बड़ा सा ऐसा एक क्रस्ट तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खपली. बाद में वो निकल जाता है क्योंकि अंदर का टिश्यू नॉर्मल हो गया. उसके अंदर जो टिश्यू रहता है beneath the scab, that will be cured and thus that scab will be removed. मतलब वो जो क्लॉट बना था टेम्पररी, वो निकल गया. Okay, so this is how the clotting takes place. The normal khapli is clot. Yes, khapli is clot, Shravani. So normal clotting time is 2 to 8 minutes. Matlab within 2 to 8 minutes, the blood will clot completely. So that is the clotting time. ठीक है? सबने लिखा बराबर? No, sir. As it forms the clot, then why hemorrhage is caused? Till the time the clotting is formed, there will be hemorrhage. हेमरेज मतलब क्या? ब्लीडिंग. क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा. लेकिन ये क्लॉट फॉर्मेशन आरबीसी, सपोज अगर सॉरी आर्टरी कट हो गया तो होगा क्या? आर्टरी अगर कट हो गया तो हो सकता है क्या क्लॉट फॉर्मेशन? सर पर आर्टरी कट ही नहीं होगा ना, वो तो बहुत ही अंदर होता है ना. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इधर एक आर्टरी होता है, मेरा हाथ दिख रहा है, यहाँ पे एक आर्टरी होता है ना, रेडियल आर्टरी. वो तो ऊपर ही है ना, सुपरफिशियल है. आपको फील भी होता है, इधर ऐसे उंगली रखोगे तो आपको फील होगा. सो दैट आर्टरी कैन बी कट ना. लेकिन आर्टरी अगर कट हो गया तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि विद द इनसाइड द आर्टरी द ब्लड इज ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर. समझ में आ रहा है? तो प्रेशर इतना होता है कि प्लेटलेट जमा हो जाएंगे, फिर प्रेशर के कारण निकल जाएंगे, फिर प्लेटलेट जमा होने की कोशिश करेंगे, प्रेशर आया, निकल गया, मतलब ब्लीडिंग चालू ही रहेगा. आर्टरी अगर कट हो जाता है तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग. गेट इन दिस? लेकिन जो नॉर्मली जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, या तो वो वेन कट होने के बाद होगा या फिर कैपिलरीज. वेन्स एंड कैपिलरीज सुपरफिशियल होते हैं ना बॉडी के सरफेस पे, तो अगर वो कट हो गए, वो डैमेज हो गए तो क्लॉट फॉर्मेशन होगा. लेकिन आर्टरी कट हो गया तो पॉसिबल नहीं है क्लॉट फॉर्म करना बिकॉज विद इन द आर्टरीज द ब्लड इज ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर. इसके लिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा कट लेता है ना, इधर मेरे हाथ दिख रहा है आपको, तो वो ऐसा ऊपर ऊपर नहीं लेने का, थोड़ा सा डीप कट लेने का, ताकि इधर का आर्टरी कट होना चाहिए. घर पे कुछ करने का नहीं है ऐसा. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इंफॉर्मेशन. कभी काम में आए तो आएगा कि कभी काम में ये सर लास्ट स्लाइड. नहीं ना? हाँ, कभी करना भी मत ऐसा. ये लो लास्ट स्लाइड. सर इसके भी पहले वाले दिखाओ ना एक बार. हाँ, इन डेंगू प्लेटलेट्स आर रिड्यूस, सो डज क्लॉट. नहीं नहीं, डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है बेटा, मीनिंग इट रिड्यूसेस और इट स्टॉप्स और रादर रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स. दैट्स अ वायरल एक्टिविटी.
ठीक है, सो उसकी वजह से डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ये वाला स्लाइड चाहिए था। हाँ सर, और इसके भी पहले वाला एक। इसके भी पहले वाला, इसके पहले क्या था, ये था। हाँ ये हो गया था, हाँ हो गया सर। आगे बढ़े। ये वाला एक बार दिखाओ सर। हाँ ये है, अभी सामने ही है तुम्हारे। Finished? Show slides from blood does not coagulate. Okay, Shruti. Yes, Kalyani, what is your doubt? कल्याणी, माइक ऑप्शन 2, तो हाथ ऊपर कर। हाँ किया है, हाँ बोल। सर, अगर ब्लड क्लॉट होता है तो ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? मींस ओवर एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो जाता है ना तब तक। हाँ तो ब्रेन हेमरेज का मतलब आता है ब्लीडिंग। ब्रेन हेमरेज डजंट मीन दैट देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। अच्छा, व्हाट इज ब्रेन हेमरेज? ब्रेन हेमरेज में ब्रेन विल नेवर बी अफेक्टेड। ब्रेन टिश्यू को इतना आसानी से डैमेज करना पॉसिबल नहीं है। सो ब्रेन के ऊपर ना कवरिंग्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस, एंड दैट मेनिंजेस इज रिच इन ब्लड सप्लाई। तो वो मेनिंजियल आर्टरीज या फिर रादर नॉट आर्टरीज बट मेनिंजियल वेन्स आर गेटिंग डैमेज्ड, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। एंड एज फ्रॉम देयर इट इज डिफिकल्ट फॉर ब्लड टू कम आउट, तो वो उधर जमा हो जाता है, बराबर है, यस। बाहर नहीं आ सकता ना, तो उधर जमा हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, लेकिन ब्लड लॉस उतना ही होता है जितना स्किन कट करने के बाद होगा। लेकिन स्किन कट होने के बाद जो ब्लड लॉस होता है वो बाहर निकल जाता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि क्वांटिटी कितना है। बट दैट इज नॉट द केस विद द ब्रेन हेमरेज लाइक कंडीशन। सो देयर द क्लॉट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बड़ा सा क्लॉट बन जाएगा, एंड देन दैट क्लॉट विल स्टार्ट कंप्रेसिंग द ब्रेन टिश्यू इन दैट एरिया एंड द पर्सन विल सफर फ्रॉम साइंस एंड सिम्टम्स। ऐसा है। डायबिटिक पेशेंट्स में लोहिता क्लॉटिंग इसके लिए नहीं होता है बिकॉज ऑफ द हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स दैट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज फॉर्मेशन। तो प्रोथ्रोम्बिनेज ही नहीं बना, तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फर्दर मैकेनिज्म गेट्स अफेक्टेड। ठीक है लोहिता? तो हाँ इस स्लाइड में ना वो क्लाउड में जो लिखा था ना 2 जगह पे। अरे वो हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन है रे। हाँ ऐसा ओके क्या करता है रे तू, तुमको पता है ना ये प्लाज्मा प्रोटीन है। सिंपल प्लाज्मा प्रोटीन, दोनों भी प्लाज्मा प्रोटीन। इफ यू रिमेंबर, मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था प्लाज्मा कंटेन्स 7% प्रोटीन्स कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन। उसमें से प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, है ना, ये सब होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। हाँ क्लाउड को रिमूव कर दिया आदित्य, काले बादल छाए थे उनको निकाल दिया मैंने। Sir, next slide. एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। कैसे होगा? ये जो मेशवर्क होता है ना, इन मेशेस मतलब क्या, ये मेशवर्क या फिर ऐसा नेटवर्क बनाना चालू कर देगा। हु? फाइब्रिन, करेक्ट। और ये नेटवर्क में प्लेटलेट्स रहेंगे, ब्लड सेल्स रहेंगे और थोड़ा सा प्लाज्मा भी रहेगा। तो सर फिर वो ब्लड को रखना के लिए क्या करते हैं? बीपी को कम करते हैं क्या मतलब? अच्छा, ये आर्टेरियल ब्लड को कम करने के लिए कॉम्प्रेशन, और कौन सा आर्टरी कट हुआ उसके हिसाब से सर्जरी, दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। सर आई एम कंफ्यूज्ड इन द लास्ट स्लाइड, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म्स प्रोथ्रोम्बिनेज। क्यों कंफ्यूजन है गौरव? Thromboplastin is a chemical substance or an enzyme released by a platelet which activates the prothrombinase, and prothrombinase converts prothrombin into thrombin. Gaurav? सर हाँ मैंने ना एक बार यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट पे देखा था, अगर स्पेस सूट के बगैर अगर कोई स्पेस में जाता है तो वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड
बॉइल होने लगता है स्पेस में, तो ऐसा क्यों होता है? ब्लड क्या होने लगता है? बॉइल होने लगता है, वाइल? बॉइल उकळायला लागतं ते. अच्छा अच्छा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर इफेक्ट ना, बिकॉज देर इज नो ग्रेविटी इन द स्पेस, सो नेचुरली उधर प्रेशर ही नहीं है ना, जीरो प्रेशर, और हमारे बॉडी का प्रेशर उसके साथ मैच ही नहीं हो पाएगा, तो नेचुरली बॉडी फट जाएगा. फॉरगेट बॉइल. बराबर है ना? सर मुझे नहीं पता था इसलिए पूछा. अरे प्रेशर इफेक्ट है बेटा वो, दैट्स अ प्रेशर इफेक्ट. ओके सर, हाँ, डन. डन सर. चलो, ये हो गया हमारा प्लेटलेट फॉर्मेशन एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. ठीक है. सो लिक्विड ब्लड व्हेन द क्लॉट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिकम्स सेमी सॉलिड और जेली लाइक, ऐसा बोला गया है. ठीक है. सो दैट इज हाउ इट इज बीन अंडरस्टूड. अभी इसमें और कुछ डाउट्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, तकलीफ, परेशानी, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, गुड. चलो, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ व्हाट वी हैव सीन एंड अंडरस्टूड अबाउट द ब्लड. अभी ना there is one important concept which we need to understand here, and that is known as the blood groups. तो इसका इंट्रोडक्शन में करवा देता हूं और उसके बाद हम लोग रोकेंगे लेक्चर को. ठीक है. नाउ व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स? बेसिकली ये होता क्या है? तो ना, इमेजिन एन एरा और अ टाइम व्हेन पीपल डिडंट हैड एनी आइडिया कि ऐसा कुछ होता है ब्लड ग्रुप्स या कुछ समथिंग लाइक दिस. देयर वर सम साइंटिस्ट अराउंड इन द ईयर 1900. ठीक है. लैंडस्टेनर नाम का साइंटिस्ट था. अब ये साइंटिस्ट ने क्या किया ना, ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग आरबीसीज एंड टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट द सरफेस ऑफ द आरबीसी हैज अ स्पेसिफिक एंटीजन. ठीक है. ऐसा एक मॉलिक्यूल मिला which he identified that as an antigen. इसको एंटीजन इसके लिए बोला गया है क्योंकि, लेकिन ये हमारा खुद का है. हाँ, हमारे बॉडी का खुद का एंटीजन है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये फॉरेन नहीं है, हमारा खुद का है. So that specific antigen is present on the surface of the surface of the RBC, and therefore it was named or it was called as a type of blood group. तो कितने एंटीबॉडीज मिले? तो इनको मिले, सॉरी, कितने एंटीजन मिले? तो इनको सिर्फ 2 एंटीजन मिले. कौन कौन सा? एक एंटीजन मिला, उसको नाम दिया उसने ए, और दूसरे को नाम दिया बी. लेकिन कुछ आरबीसीज ऐसे भी मिले जिसमें उनको दोनों एंटीबॉडीज एंटीजेंस मिले. कौन सा? ए एंड बी. तो वो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ए बी. ओके. और उसके साथ फिर ऐसा भी कुछ आरबीसीज मिले जिसमें antigens were absent, मतलब surface of antibody, surface of RBC did not had any antigen, so it was called as O blood group. तो इस तरीके से ये 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप बनना चालू हो गया. We called this mechanism or system as ABO blood group system. So it's a widely accepted blood group system across the world, and every person in this world will have any one of them, any one of the blood group. ठीक है. That is either the person will have A blood group, B blood group, AB or O. ठीक है. Yes, सोहम. सर तो फिर ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव का कांसेप्ट कहाँ से आया? वेट, पहले ये समझ लो. ठीक है. अच्छा, उसमें से है ना ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप 1900 में डिस्कवर हुआ, और ए बी ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी हुआ 1901 में. ए बी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड. ठीक है. तो थोड़ा सा डेट्स वगैरह भी याद रखो क्योंकि ये जरूरी है. डिस्कवर्ड बाय सेम साइंटिस्ट ना, लैंडस्टेनर. ठीक है. तो अभी ये सब ना ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये तो हो गया हमारा एक बेसिक, मतलब पेशेंट के आरबीसी, सपोज वी हैव दिस आरबीसी, सो दिस सरफेस ऑफ द आरबीसी विल हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एन एंटीजन. सो वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द एंटीजन.
If it's A antigen, then the blood group is A. If it is B antigen, then blood group is B. अगर दोनों रहेंगे तो AB, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो O blood group. ठीक है. Then the question comes कि अभी ऐसे भी कुछ RBCs मिले जिनमें ना A और B, इसमें से कोई एंटीजन नहीं है, कुछ और ही टाइप का एंटीजन है, which is considered as a very rare antigen. एकदम रेयर एंटीजन इन लोगों को मिला, which was then found only in specific people, तो वो अलग से एक ब्लड ग्रुप बन गया, उसको नाम दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप. फर्स्ट केस वाज फाउंड इन मुंबई ओनली, इसके लिए उसको नाम दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, which is an antigen other than AB. AB छोड़ के एकदम अलग से है, a very rare type of blood group. रेयर है क्योंकि ये कॉमन, साई प्रसाद, ये मिलता नहीं है एंटीजन. जो एंटीजन हम लोगों को मिलते हैं ये सिर्फ AB है, AB और O होता है, और रादर AB होता है. दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन इज वेरी रेयर, सो इट इज नोन एज बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसका पहला केस हम लोगों को उधर मिला था. हाँ, ऐसा बोलते हैं भक्ति, इसको गोल्डन ब्लड बोलते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये ब्लड ग्रुप ना आप किसी को दे सकते हो ना किसी का ले सकते हो, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोगों को उनका ही ब्लड मैच हो पाता है, बाकी किसी का नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक है, बट रेयर है. नो नो नो, O is not called as Bombay blood group, it's a different. O is a part of your AB blood group system, Bombay blood group system is completely different. ये एकदम अलग ही है, उसका O के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है. सॉरी 1952 में Y.M. भेंडे नाम के साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था मुंबई में. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन अदर नेम एज बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ठीक है. Y.M. भेंडे नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था पहली बार. ओके, समझ में आया सबको ये? तो अभी ना हम लोगों को बेसिकली ये समझना है कि ये एग्जैक्टली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है. ओके, तो ये क्या है, ये श्रावणी सिंह व्हाट भिंडे, अच्छा उसके रिप्रेजेंट कुछ भी. First time in Maharashtrian scientist. I know Sanika. First time Maharashtrian scientist name in this. नहीं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम को कोई स्पेसिफिक एब्रिविएशन दिया नहीं है. इट इज कंसिडर्ड एज बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ठीक है, इसी तरीके से उसको लिखा जाता है. वेरी रेयर ब्लड ग्रुप, फाउंड ग्लोबली भी बहुत कम है. इसका जेनेटिक कंट्रोल इज कंसिडर्ड एज HH जीन्स, ऐसा बोलते हैं उसको. ठीक है, HH जीन्स इज द वन विच इज कंट्रोलिंग दिस, क्योंकि हम लोगों को इसका जेनेटिक कंट्रोल भी देखना है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, डॉक्टर है वो बट साइंटिस्ट ऑल्सो, इशिता, दोनों भी. फाइन. तो ये एक बेसिक आइडिया है अबाउट द ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो बाकी MNS ब्लड ग्रुप आता है या बाकी के भी ब्लड ग्रुप आते हैं, सो दैट वी विल स्टडी कि वो किस तरीके से होते हैं. लेकिन ये दो मेजर है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, राइट, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किस तरीके से काम करता है. और उसके बाद ऑफ कोर्स RH का भी कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी नहीं. RH थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस करूंगा. पहले ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम समझ लो, उसके बाद RH सिस्टम आएगा. ओके, तो दिस इज व्हाट द बेसिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज. अभी हम लोग यहाँ पे लेक्चर रोकते हैं क्योंकि नासिक वालों का और एक लेक्चर है 6 बजे, राइट. सो टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर एंड देन यू कैन ज्वाइन. ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम. Thank you, sir. यस, ये लास्ट Thank you, स्लाइड है. sir. Bye, sir. यस, बाय बाय. ये Thank you, लास्ट sir. स्लाइड है, किसको चाहिए था लास्ट स्लाइड? आनंद, आनंद, Bye, sir. बाय. आनंद हो गया.
Yes, bye bye Kalyani, thank you, bye. Yes, chalo done. So I'll stop this now.